So let's start unit 3. Unit 3 is based on service transition. See, all the 5 units are based on service life cycle. So there are 5 phases of service life cycle. Okay, 5 phases में first unit जो है, first it is based on first phase of service life cycle, service strategy. Second design पे है, service design. Third service transition. Fourth service operation. Fifth continuous service improvement पे. Okay, let's understand what is the meaning of service transition. See, in service transition phase, we are focusing on how to release, deploy, and implement the service. How to release, deploy, test, and implement the service. कहाँ पे focus है हमारा? Service design में. See, let's consider from the first phase of service life cycle. So the first phase is service strategy. Strategy में what we are doing, we are planning. Okay, we are planning all the activities, okay, which we are going to use in the while designing the service. Okay, like in service strategy phase, we are focusing on the customer's requirement. Customer's requirement, we are trying to understand the customer's requirement in service strategy phase. Then we are doing the planning. Okay, then in service design is based on the service strategy only. Whatever we have planned out, now we are making the architecture. Okay, जो प्लान किए उसका आर्किटेक्चर वी आर ड्राइंग इन सर्विस डिजाइन फेज. देन इन द ट्रांजिशन फेज, एक डिजाइन मेरे पास अभी रेडी है. So in the transition phase, we are focusing on how to release the service, how to test the service, how to deploy the service, how to implement the service. Okay. So what is service transition? How you can define it? Service transition. In service transition, we are focusing on how to release, deploy, test, and implement the service. Right? Now see, फिगर इतना अभी क्लियर नहीं होगा. ठीक है, ये फिगर पे बेस्ड ही बाकी कॉन्सेप्ट से, लाइक इंट्रोडक्शन टू सर्विस डिजाइन. ओके, सर्विस मैनेजमेंट एज ए प्रैक्टिस, what are the principles of service transition, then processes of service transition. These all things you have to see, okay, in the remaining slides. Okay, now see the main goal of service transition. Main goal क्या है service transition? To plan and manage service changes and deploy service. See, plan करना, to plan the service, plan and manage service changes. Service changes means, suppose if you want to change the service, क्या करना है? If you want to change the service, existing service if you want to change, तो मेन गोल सर्विस ट्रांजिशन में ये होता है, we can plan the changes, we can plan and manage the changes which we want to do in that particular service. Suppose if you want to add any new features, if you want to add any new features, if you want to delete the old features, okay, so what you can do, you can change the service, right? So main goal service transition का ये है, you can plan and manage the service changes. ठीक है, प्लान कर दिया how we can change the service, then we are managing also, जो भी changes किए उसको manage कर रहे हैं. Okay, then what we will do after planning and managing the service changes, we can deploy it. Okay, we can deploy service releases into the production environment. कहाँ पे deploy करेंगे? Production environment में. For example, next phase क्या है सर्विस ट्रांजिशन का? सर्विस ऑपरेशन फेज. ओके, तो सर्विस ऑपरेशन फेज में हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रोडक्शन करेंगे, मींस वी विल डिप्लॉय इट. ओके, तो मेन गोल क्या होता है? मेन गोल ऑफ सर्विस ट्रांजिशन, मेन गोल ये है कि न्यू और चेंज सर्विस, न्यू भी बोल सकते हो और चेंज सर्विस. ओके, न्यू और चेंज सर्विसेज को प्लान करना और मैनेज करना. ठीक है, देन वी हैव टू डिप्लॉय इट. जो चेंज सर्विस है, वी हैव टू डिप्लॉय इट इनटू द प्रोडक्शन environment. Okay, now see scope of service transition. See, what is the scope of service transition? ठीक है, इसका स्कोप कितना है? See, स्कोप मतलब
लाइक फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, BSc का स्कोप कितना है, ये इसके स्कोप क्या है. तो if you are speaking about scope, BSc scope, we can say कि क्या क्या डिफरेंट स्कोप है. हार्डवेयर सेक्टर में यू कैन गो, ठीक है, और यू कैन ऑप्ट फॉर सॉफ्टवेयर सेक्शन ऑल्सो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. देन इन हार्डवेयर में अलग अलग कैटेगरीज आएंगे, सॉफ्टवेयर में अलग अलग कैटेगरीज आएंगे. प्रोग्रामर बन सकते हो, डेटाबेस प्रोग्रामर और एनी अदर प्रोग्रामर. ओके, तो ये क्या है, स्कोप मीन्स उसका बताना कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है. स्कोप मीन्स कैपेबिलिटी. ओके, so what is the scope of service transition? It provides guidance for the development and improvement of capabilities. Scope में क्या रहेगा, अगर see if you are focusing on the scope, जब कोई कोर्स डिजाइन होता है, लाइक जब तुम्हारा BSc IT किसी ने डिजाइन किया होगा, ये BSc IT होना चाहिए, देन BAF, देन BBI and then BMS. So while designing the service, ये सर्विस ही है ना, फॉर एग्जाम्पल BMS, BAF, BBI, BCom. Okay, so while designing the service, what they are focusing on the syllabus plus उसका scope क्या होगा. According to the scope, they are focusing on the, according to the scope, they are designing the syllabus. ठीक है, इसका scope को ध्यान में रख के they are designing the syllabus, right? ये तुम्हारा एजुकेशनल फील्ड में हो गया. बट अगर इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट स्कोप, स्कोप मीन्स में कितनी कैपेबिलिटीज है, राइट? स्कोप मीन्स कितनी कैपेबिलिटीज है, वेदर इट इज कैपेबल और नॉट, कितना कैपेबल है. ओके, तो स्कोप मीन्स गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज. किसके बारे में गाइडेंस है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सर्विस, improvement of the capabilities, for transitioning new and changed services into the production environment. See, main goal इसका ये है कि जो भी न्यू सर्विस है, न्यू मीन्स टोटली न्यू सर्विस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. चेंज सर्विस मीन्स एग्जिस्टिंग सर्विस में you are changing something, you are modifying something. What is change service? Change service में means change. What is change service? Change service means existing service में we are modifying, we are adding anything, okay, or we are deleting anything. That is change service. So see, scope means हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या डिफाइन है? डेवलपमेंट, गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज. कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है, ताकि हम लोग इजीली ट्रांजिशन कर पाए. ट्रांजिशन मीन्स क्या? ट्रांजिशन कर पाए न्यू सर्विस और चेंज सर्विसेज को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में. ट्रांजिशन करना मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना, ठीक है. ट्रांजिशन मीन्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट क्या करना, उसको ट्रांसफर करना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू और चेंज सर्विसेज को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ट्रांजिशन कर रहे हैं. न्यू और चेंज सर्विसेज को कहाँ पे डाल रहे हैं? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ट्रांजिशन कर रहे हैं, मीन्स सेंड कर रहे हैं. ओके, तो नाउ सी, इंक्लूडिंग रिलीज प्लानिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट. तो इसमें क्या रहेगा? हाउ वी कैन बिल्ड दी सर्विस, हाउ वी कैन टेस्ट दी सर्विस, हाउ वी कैन डिप्लॉय दी सर्विस, यही है. ओके, ये क्लियर होगा आई थिंक सबको. स्कोप मीन्स दे आर स्पीकिंग अबाउट द कैपेबिलिटी. कितना कैपेबिलिटी है? कैपेबिलिटी का मीनिंग क्या है? एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, skills, processes. See how much you are capable. If I am asking this question from any one of you, how much you are capable to do to complete this task, any task. ठीक है, if I am asking this question from you, how much you are capable, तो ये बोले हाँ, yes I am capable because I am having knowledge of this thing. Okay, I will work hard, I will work 10 hours in a day. तुम क्या बता रहे? I am having enough resources also. ठीक है, I am having printer so I can take the print out also. जो भी कैपेबल मीन्स कितना कैपेबल है वो इंसान. तो कैपेबिलिटी हाउ यू कैन डिफाइन, कितना उसके पास रिसोर्सेस है, कौन सी टेक्नोलॉजी है उसके पास, ठीक है, स्किल्स है और प्रोसेसेस है. अगर ये सब होगा तो मीन्स क्या है? कैपेबिलिटी. वी आर कैपेबल इनफ टू डिलीवर दैट सर्विस. इज इट क्लियर व्हाट इज कैपेबिलिटी? तो स्कोप में हम लोग क्या कर रहे हैं? गाइडेंस है किसके बारे में? डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज. हाउ वी कैन डेवलप एंड इम्प्रूव द कैपेबिलिटीज मीन्स हाउ वी कैन
how we can collect different resources, ठीक है, how we can improve the skills, ठीक है, how we can train the employees. See, अगर capable enough होना है, let us consider, if you want to change the service means, if you want to change the service means, if you want to let us consider, in the existing service, if you want to add any new features according to the market demand, okay, market demand के according, if you want to change, if you want to add any new features in the existing service, तो क्या करना पड़ेगा, कोई न्यू फीचर ऐड करना है, एंड दैट न्यू फीचर के लिए हम लोग को वी हैव टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आल्सो, सो वी हैव टू ट्रेन द एम्प्लॉइज, राइट, फॉर दैट न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी जब भी तुम ट्रांजिशन कर रहे हो न्यू और चेंज सर्विसेज का, तुम कैपेबल इनफ होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कैपेबल इनफ होना चाहिए, मींस दे शुड हैव इनफ रिसोर्सेज, they should have proper technology, skills should be there, and processes we have to implement. Okay, now see what is service management. See, now everyone knows this definition of service. What is service? Service means delivering value to customers. What is the meaning of service? Service का meaning है delivering value to customers. ठीक है, I mean, if I am saying I am going to deliver this service to the customer, ठीक है, ये सर्विस मैं कस्टमर को डिलीवर करने वाली हूँ, उसका मीनिंग क्या हुआ, मैं कस्टमर को क्या दे रही हूँ, वैल्यू दे रही हूँ कस्टमर्स को, मीन्स वैल्यू मीन्स इन टर्म्स, वैल्यू मीन्स इन टर्म्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, मीन्स तुम कस्टमर को क्या डिलीवर कर रहे हो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो कस्टमर को। ओके, so what is the, it is very important that this definition of service means delivering value to customers by facilitating outcomes customers want to achieve। कहाँ पे फोकस होना चाहिए, कस्टमर्स को क्या आउटकम चाहिए, मतलब कस्टमर्स का डिमांड क्या है, उस पर फोकस होना चाहिए सर्विस पे, बट विदाउट द ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट एंड रिस्क। मीन कस्टमर्स किस पे इंटरेस्टेड नहीं है, ownership of specific cost and risk, what are the risks associated while designing the service, what is the ownership of specific cost, मीन सप्लायर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, डिप्लॉयमेंट फेज में कितना अमाउंट, में स्पेसिफिक कॉस्ट पे इंटरेस्टेड नहीं है कस्टमर, ओवरऑल अमाउंट में इंटरेस्टेड है, बिकॉज दे हैव टू पे आल्सो फॉर दैट सर्विस, बट स्पेसिफिक कॉस्ट मीन स्ट्रेटेजी, डिजाइन, ट्रांजिशन, इस फेज में स्पेसिफिक कॉस्ट कितना यूज हुआ है, इन डिटेल, माइनर डिटेल में कस्टमर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, so you can say that simply, what is service means delivering value to customers, okay, and we have to keep in mind what customers want to achieve, but without the ownership of, customers are not interested in ownership of specific cost and risk। Okay, so this is the meaning of service। Now see what is service management। सर्विस मैनेजमेंट क्या है? See, service management means set of specialized organizational capabilities for providing value to customers in the form of services। So it is very simple. Service means we have to deliver value to customers. Okay. सर्विस मैनेजमेंट को तुम सिंपली बोल सकते हो, वी हैव टू मैनेज द सर्विस। ये वर्ड इटसेल्फ इज डिस्क्राइबिंग, जो वर्ड है सर्विस एंड मैनेजमेंट, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वी हैव टू मैनेज द सर्विस, राइट। हाउ वी कैन मैनेज द सर्विस, उसी पर डेफिनेशन है, हाउ वी कैन मैनेज द सर्विस, सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, मीन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज होना चाहिए मेरे पास, लाइक प्रॉपर टूल्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटीज मीनिंग, कैपेबिलिटीज का मीनिंग क्या है, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, प्रोसेसेस, ये सब होना चाहिए, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू customers in the form of, for providing value to customer in the form of service। तो क्या प्रोवाइड करना, वैल्यू टू कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। इज इट क्लियर? तो सर्विस मैनेजमेंट क्या है, सेट ऑफ
कैपेबिलिटीज, सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। ओके, अगर हमारे पास कैपेबिलिटीज है मीन्स रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, पीपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्स है, तो वी कैन मैनेज दी सर्विस। इज इट क्लियर? सर्विस मैनेजमेंट क्या है? मीन्स वी हैव टू मैनेज दी सर्विस। so how we can manage the service? if you are having the capabilities, अगर कैपेबिलिटीज है तो वी कैन मैनेज दी सर्विस। तो कैपेबिलिटीज क्या है? टेक्नोलॉजी, पीपल, रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, राइट? ये सब कैपेबिलिटीज है। सो इफ यू आर हैविंग द कैपेबिलिटीज वी कैन इजीली मैनेज द सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर्स। व्हाई वी आर गोइंग टू मैनेज द सर्विस? क्यों मैनेज करना है सर्विस को? बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। Now see functions and process of service transition. Functions and process of service transition. See, what are the functions of service transition? Units of organization specialized to perform certain types of work. See, units of organization. अभी functioning क्या है? Service transition, how it is functioning? क्या क्वेश्चन है मेरा? How it is functioning? अभी लेट अस कंसीडर, हम लोग ये बोलेंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ इट इज फंक्शनिंग। हम लोग ये बोलेंगे लेट अस कंसीडर नारायण गुरु कॉलेज, हाउ इट इज फंक्शनिंग। कैसे तुम बोलोगे? हाँ, इन नारायण गुरु कॉलेज देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर, डिफरेंट कोर्सेज, फॉर एग्जांपल बैब, बीएमएस, then different activities, different committees are there, right? This is how you can define the functioning of the organization. Same thing it is written here. यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट्स में डिफरेंट यूनिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, फाइनेंस, देन ट्रांजैक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन किसमें डिवाइड होता है? डिफरेंट यूनिट्स में, टू परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क। लाइक कमिटीज, तुमको पता है, लेट अस कंसीडर कॉलेज एग्जांपल ओनली, एग्जाम कमिटी, वेलफेयर कमिटी, स्पोर्ट्स कमिटी, ठीक है, डिफरेंट कोर्सेस आर देयर। वैसे फॉर सेम यहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स टू परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क। सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क असाइंड है डिफरेंट यूनिट्स में, एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक आउटकम। आउटकम भी आना चाहिए कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेलफेयर कमिटी है तो आउटकम भी आना चाहिए। वेलफेयर में क्या क्या पार्ट आता है? स्कॉलरशिप पार्ट आता है और अदर पार्ट आता है रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के मतलब बेटरमेंट के लिए वो वेलफेयर में आता है। तो ऐसी एग्जाम कमेटी, एग्जाम कंडक्ट करना, ये सब स्पेसिफिक आउटकम आना चाहिए। सेम यहाँ लिखा है सर्विस ट्रांजिशन का फंक्शनिंग कैसे होता है। यूनिट्स डिवाइड हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूनिट से, एंड दे आर डूइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेन स्पेसिफिक आउटकम्स। ओके, देन और क्या फंक्शन है सर्विस ट्रांजिशन का? और क्या फंक्शन है? सेल्फ कंटेंट विथ कैपेबिलिटीज। क्या क्या है उसके अंदर? कैपेबिलिटीज है सर्विस ट्रांजिशन के अंदर, जब भी वो फंक्शन करेगा ना। कैसे फंक्शन करेगा सर्विस ट्रांजिशन? उसके बाद कैपेबिलिटीज होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम लोग सर्विस ट्रांजिशन करेंगे ना। जैसे अभी न्यू और चेंज सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल न्यू सर्विस तुमको इम्प्लीमेंट करना है और लेट अस कंसीडर चेंज सर्विस करना। चेंज में एग्जिस्टिंग सर्विस को मॉडिफाई करना। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, देन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होना चाहिए। अगर तुम कोई न्यू सर्विस इंप्लीमेंट करना है और नहीं तो फिर तुमको एग्जिस्टिंग सर्विस में भी वांट टू मॉडिफाई एनीथिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होना चाहिए। तो ये फंक्शनिंग के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और फंक्शनिंग ऑफ द सर्विस ट्रांजिशन डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, ताकि दे विल डू सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क एंड आउटकम आना चाहिए। कैपेबिलिटीज होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? सबका ध्यान है ना लेक्चर में? यस मैम। ओके, नाउ लेट्स सी प्रोसेस क्या है।
प्रोसेस ऑफ सर्विस ट्रांजिशन। ओके, सी प्रोसेस ऑफ सर्विस ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? एग्जांपल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। कैन एनीवन आंसर ये याद? डू यू रिमेम्बर दिस? व्हाट इज क्लोज लूप एंड व्हाट इज ओपन लूप? किसको याद है ये? क्लोज लूप और ओपन लूप, ये टॉपिक हम लोग देखे थे। क्लोज लूप का मीनिंग क्या है? कैन एनीवन आंसर? फीडबैक सिस्टम, नॉन फीडबैक सिस्टम याद आ रहा है? ओपन लूप नॉन फीडबैक सिस्टम है। ओपन लूप को हम लोग नॉन फीडबैक सिस्टम भी बोलते हैं एंड क्लोज लूप को हम लोग बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। सी भूल गए तो याद करो फिर से। ओपन लूप, नॉन फीडबैक सिस्टम। ओपन लूप और नॉन फीडबैक सिस्टम सेम है। क्लोज लूप और फीडबैक सिस्टम। सी क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम, ओपन लूप नॉन फीडबैक सिस्टम। तो सी जो क्लोज लूप है, क्लोज लूप का मीनिंग ये है कि फीडबैक सिस्टम पे डिपेंड है। फीडबैक सिस्टम पे डिपेंड ये है, इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल जो क्लोज लूप सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एरर जो है उसको करेक्ट करता है। ये क्लोज लूप सिस्टम ऑटोमेटिकली करेक्ट दी एरर्स। जो भी एरर आया है उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है। सो वी कैन से दैट ये फीडबैक सिस्टम पे डिपेंड करता है बिकॉज इट ऑटोमेटिकली करेक्ट दी एरर। सिर्फ क्लोज लूप का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर जो है, एसी जो है, वो क्लोज लूप सिस्टम है बिकॉज वो फीडबैक पे डिपेंड करता है। फीडबैक पे डिपेंड करता है मीन्स उसके इंटरनल जो फंक्शनिंग है एसी का, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड कूलिंग होगा, ठीक है, डोर क्लोज होना चाहिए। तो ये वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। जो एसी है वो अपने एनवायरनमेंट पे कुछ फैक्टर्स है, लाइक क्लोज रूम होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट दी कूल एयर। ओके, तो वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम पे डिपेंड करता है। क्लोज लूप और फीडबैक सिस्टम सेम है, एग्जाम में आ सकता है। क्लोज लूप इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीडबैक सिस्टम, ओपन लूप इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन फीडबैक सिस्टम। अभी नाउ सी, सी जो ओपन लूप होता है, ठीक है, ओपन लूप में जो इनपुट है, इनपुट डजंट डिपेंड ऑन द आउटपुट। सी ये रिवाइज हो रहा है, तुम लोग शायद आई थिंक भूल गए हो ये ओपन लूप क्या है। ओपन लूप जो है, ओपन लूप में इनपुट जो है does not depend on the output. Everyone note down these. Open loop system में input does not depend on the output, इसलिए हम बोलते हैं नॉन फीडबैक सिस्टम। इनपुट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं है। इनपुट इन ओपन लूप सिस्टम, इनपुट डज नॉट डिपेंड ऑन द आउटपुट, और उसको हम लोग नॉन फीडबैक सिस्टम भी बोलते हैं। क्लोज लूप सिस्टम में इनपुट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट, इनपुट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट, और उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। इज इट क्लियर? सबने नोट डाउन किए ओपन लूप एंड क्लोज लूप को? ठीक है, नाउ सी प्रोसेस, सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस क्या है? एग्जांपल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम्स बिकॉज दे प्रोवाइड चेंज एंड सी, यहाँ पे वी कैन कंसीडर एग्जांपल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम मींस इनपुट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट। मीन जो आउटपुट आएगा ना वो इनपुट के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, ये सब क्लोज लूप सिस्टम है बिकॉज इनपुट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन में जब तुम जितना टाइमर दोगे वो टाइमर के अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। समझ रहे हो? अभी आउटपुट क्या आ रहा है वॉशिंग मशीन का कि तुमको क्या चाहिए? क्लीन क्लोथ चाहिए, पूरा ड्राई चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट है। क्लीन क्लोथ और ड्राई ये आउटपुट है। और वो क्लीन क्लोथ और ड्राई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना तुमने टाइमर सेट किए हो, टाइमर है वॉशिंग मशीन में,
ठीक है, टाइमर पे डिपेंड है वो। तो टाइमर पे 5 मिनट्स का टाइमर लेट अस कंसीडर, 5 मिनट्स के बाद जो आउटपुट आएगा, ठीक है, क्या रहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है क्लोथ पूरा प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है, हो सकता है ना। ठीक है, इतना इन डिटेल नहीं जाना है। तो क्लोज लूप सिस्टम में जो आउटपुट जो आता है वो किस पे डिपेंड होता है? इनपुट फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ओके, तो हियर वी कैन कंसीडर एग्जांपल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम बिकॉज दे प्रोवाइड चेंज। सी सर्विस ट्रांजिशन में हम लोग क्या करते हैं? चेंज, सर्विस चेंज कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग होती है। अगर तुमको सर्विस को चेंज करना है, ठीक है, तो वाई, सी आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस, दे प्रोवाइड अ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स अ गोल। क्यों चेंज करते हैं हम लोग? चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज कोई गोल होता है हमारा, इसलिए चेंज करते हैं। ठीक है, या हम लोग को कोई फीडबैक चाहिए, या कोई चीज करेक्ट करना है, इसमें हम लोग चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जब तुम चेंज करोगे तो चेंज जो है वो क्लोज लूप सिस्टम पे डिपेंड है। बिकॉज चेंज में वी वांट आउटपुट, चेंज में वी वांट आउटपुट, आउटपुट किस पे डिपेंड होगा? इट डिपेंड्स ऑन दी इनपुट फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन दी इनपुट फैक्टर्स। ओके, डोंट फॉरगेट दिस सेंटेंस, भूलना नहीं है। प्रोसेस जो है, सर्विस ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है, उसमें क्लोज लूप सिस्टम को यूज किया गया है। ओके, नाउ सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेजरेबल, स्पेसिफिक रिजल्ट्स, कस्टमर्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस। ये यूनिट 2 में भी था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस, यूनिट 2 में भी था। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस? कोई भी प्रोसेस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रोसेस मेजरेबल होना चाहिए, जो भी प्रोसेस तुम यूज कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए ताकि तुम मेजर कर पाओ उसका पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स दोनों, मीन्स कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना लॉस मिल रहा है। तो प्रोसेस मेजरेबल होना चाहिए, प्रोसेस का रिजल्ट आना चाहिए। अगर तुम कोई भी प्रोसेस यूज कर रहे हो तो उसके रिजल्ट भी आना चाहिए। लाइक इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स 6 आवर्स, तो उसका रिजल्ट आउटकम भी आना चाहिए। अदरवाइज वो प्रोसेस इंप्लीमेंट करने का मीन्स यूज ही क्या हुआ? समझ रहे हो? कोई भी प्रोसेस तुम यूज कर, लाइक इफ यू वांट ओ ग्रेड, ठीक है, ओ ग्रेड के लिए तुम कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो? यू आर स्टडिंग हार्ड, राइट, यू आर स्टडिंग फॉर द 6 आवर्स और 4 आवर्स, यू आर कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट्स, ठीक है, डेली यू आर स्टडिंग, ये सब होगा। ठीक है, देन यू आर डूइंग द राइटिंग प्रैक्टिस आल्सो, यू आर सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये प्रोसेस है। तो इफ अगर हम लोग कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसका आउटकम भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना पढ़ने के बाद फेल रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो प्रोसेस मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक रिजल्ट्स आना चाहिए। और कोई भी प्रोसेस हम लोग फॉलो करें तो कस्टमर्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि कस्टमर्स को ही तो सर्विस डिलीवर करना है, राइट। तो फोकस कहाँ पे होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस, मेजरेबल, स्पेसिफिक रिजल्ट, कस्टमर्स पे फोकस करना है, रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, जो भी इवेंट अकर होगा, लाइक रिस्क हो सकता है, सर्विस में रिस्क हो सकता है, ठीक है, तो इमीडिएटली उसको हम लोग को रिस्पॉन्ड करना है, मीन्स अटेंड करना है। कोई भी इवेंट अकर होगा उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है, मीन्स इमीडिएटली उसको आंसर और अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है। ओके, दीज आर द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस: मेजरेबल, स्पेसिफिक रिजल्ट, कस्टमर्स, रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इवेंट। इज इट क्लियर टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड? सर्विस ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है, उसका गोल, स्कोप, कैपेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज सर्विस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस मैनेजमेंट? सर्विस मैनेजमेंट मीन्स सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, देन फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। इज इट क्लियर? आर यू ऑल लिसनिंग? Yes, ma'am. ओके,